A very cool or warm good evening, everyone, to the respected senior faculties, Kalpesh Mehta sir, TD sir, Thakur Desai sir, and all the dear students of November 23 and May 24 CA final students of Ednovate. I am CA Pragnesh Kanabar, teaching audit in under my own institute, under the Audit Academy. And after a lot of discussions with the students of Ednovate, CA final November 23 and May 24, we are coming up with this whole plan to complete their syllabus as per the committed timelines. This plan is an outcome of endless efforts taken by TD sir, Kalpesh Mehta sir, and myself, and some noble people who have come together to finish off the syllabus of the students. Okay, I want everyone to hear me out. I am going to explain this plan from a particular PDF. Okay, and I will be sharing this PDF with you, so everything will remain in writing with you about the whole plan. All right. Okay, so as you know that the background of the issue is the uncertainty that is over the continuity of Ednovate November 23 and May 24 students, and number of students who have taken the admissions, and now they are not clear about how their syllabus is going to be completed. All right. And there have been less number of communications from the team Ednovate, or uncertain communications about how the portion completion will be done. So we took a Zoom meeting on 31st January 2022, and today is 2nd Feb 2022. Based upon the discussions done with the students in the Zoom meeting of 31st January 2022, we understood that there are 3-point agenda that students want to be served upon. First is timely completion of the students. For November 23, they want the portion to be completed at any cost by 31st July 2023. This is the latest, not the earliest date. This is the latest. And May 24 students cannot go beyond 31st January 2024 at any cost. All right. They want, second point agenda is that they want to learn from best faculties with who have a rich experience, and they want to have live interactive lectures with recorded videos as backup, and the backup should be available till their attempt. The third thing is that since there is no clarity about what amount of refund will be given from Ednovate, students want the fees to be paid at Ednovate to be given as subsidy. Plus, many of the students have paid in cash. They may not have the fee receipts. All these issues came up in the meeting of 31st January. And the third point agenda is that students want the fees paid at Ednovate to be subsidized. हिंदी में तीनों बोल देता हूं. First, timely portion completion. Second, learn from the best faculties in the industry. Live interactive lectures with recorded videos as backup. And third is that boss, they want कि उन्होंने जो भी फीस एडनोवेट में पे की है, चाहे चेक से की हो या कैश से की हो, चाहे उनके पास क्लियर एविडेंस हो ना हो, पर स्टूडेंट कह रहा है कि मैंने एक्स अमाउंट ऑफ फीस पे की है, तो वो फीस का उसको सब्सिडी मिल जाना चाहिए, एंड देयर शुड नॉट बी एनी एडिशनल कॉस्ट. ऑलराइट. अब हमने काफी सारे लोगों से इसके बारे में डिस्कशंस किए, मल्टीपल फैकल्टीज जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, एंड मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स, मल्टीपल फैकल्टीज जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, एंड मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स. काफी सारी लोगों से हमने कम्युनिकेशंस किए, एंड उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूट से हमें कुछ कोटेशन मिले अबाउट 60,000 70,000 दैट दे विल टेक फ्रॉम द स्टूडेंट्स. ऑलराइट. कुछ इंस्टीट्यूट से हमें कोटेशंस मिले दैट दे विल बी टेकिंग for 50,000 or something, or 60,000 70,000, even though you have paid full fees. इंडिविजुअल फैकल्टीज का सबमिशंस किया तो फीस बहुत ही ज्यादा ऊपर जा रहा था. एंड देन फाइनली वी रिक्वेस्टेड, एंड आई वांट एवरीवन टू हियर इट आउट प्रॉपर्ली. देन फाइनली वी रिक्वेस्टेड मिस्टर जेके शाह सर to show it to us and to give their best faculties. Let me be very clear, to give their best faculties for the students of Ednovate. So FR will be taken by Kalpesh Mehta sir, audit will be taken by Pragnesh Kanabar sir, and for other subjects we will be getting the A grade, A rated faculties of JK Shah classes. All right, please पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लेना.
पूरा प्लान है फैकल्टी के नाम के साथ। काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम था दैट हमें फैकल्टी का नाम नहीं मिलता है। हमें एक ऐसा नहीं है कि हमें फैकल्टीज पसंद नहीं है, कुछ सिलेक्टेड फैकल्टीज पसंद है उसमें से, तो हमें फैकल्टी का नाम नहीं मिलता है। तो ये रहा फैकल्टी का नाम। ये सारी ए रेटेड फैकल्टीज है ऑफ जेके शाह क्लासेस एंड दे हैव बीन गेटिंग द बेस्ट फीडबैक। Kalpesh sir, TD sir, and myself, we requested that only and only if these faculties are given to the students, then all of us can come on one platform and serve the students. All right. First, SFM. SFM के लिए faculty है Professor Srinivasan sir for forex and derivative chapters and Professor Bhavin Gandhi sir for other chapters. I don't know whether you have heard about Srinivasan sir or not. He has 15 plus years of teaching experience and let me tell you 20 plus years of practical experience into the markets. 20 plus years of practical experience into the markets itself. All right. And he has been a very big player in the market and he knows how to teach forex and derivative to the students. Similarly is for Bhavin Gandhi sir, 10 years of teaching experience and one of the most loved professors of the students. SCMP will be taken up by Professor Mayuresh sir, Mayuresh Kuklikar sir, 19 plus years of teaching experience and well known for his notes for to the point logical explanations. In fact, कुछ बच्चे एडनोवेट के अभी भी उनके पास पढ़ रहे हैं। जब न्यूज आए थे अबाउट धवल सर नॉट बीइंग अवेलेबल, तब उन्होंने एक बैच निकाला था एंड मेनी आई थिंक 40 to 45 एडनोवेट स्टूडेंट्स आर करंटली आल्सो स्टडीइंग विद हिम। लॉ के लिए प्रोफेसर आगम दलाल सर, AIR 2 ऑल इंडिया रैंक 2 इन CA फाइनल, one of the finest in the notes preparation, and let me tell you he has scored gold medal in law paper. All right. Direct tax के लिए प्रोफेसर सौरभ भट्ट सर and Professor Agam Dalal sir. Saurabh Bhatt again is a rank holder in all CA exams. He has his own practice. He has his own practice in South Mumbai and has all the practical experience that you can ever ask for. Professor Agam Dalal has told you a rank holder and also has his own practice at Ahmedabad. तो दोनों DT के प्रोफेसर का खुद का प्रैक्टिस है and they can give you the logical explanations also. Indirect tax marvelous Professor Nitin Nahar sir, AIR 6 at CA final and one of the most loved faculties at Bangalore. वो खास मुंबई आपको पढ़ाने के लिए आएंगे. Is very articulate with his teaching. आप बैंगलोर में से कोई भी बच्चे को पूछो about indirect tax, नितिन नाहर सर, उनका एक लेक्चर and you will understand the level of quality that person has. Okay. इलेक्टिव पेपर के लिए आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे विद सब्सिडाइज्ड फीस. वो जब आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप कॉल ले लेना कि आपको क्या करना है. सो इलेक्टिव पेपर का फ्रेमवर्क विल बी डिसाइडेड एज एंड व्हेन वी गो अहेड. ये था फैकल्टी का प्लान. ऑलराइट, ओके. सारे के सारे फैकल्टी लाइव पढ़ाएंगे, लाइव इंटरैक्टिव लेक्चर्स विथ द रिकॉर्डेड बैकअप दैट विल बी गिवन टू यू. ओके, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइम टेबल की. टाइम टेबल, पहले तो ये बैच के टाइम टेबल को लेके काफी सारे डिस्कशंस हुए. पता चला सेंट्रल लाइन में कुछ हुआ है एडनोवेट में, वेस्टर्न लाइन में कुछ एक्स चीज हुई है, सेंट्रल लाइन में कुछ वाई चीज हुई है. सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बिठाकर एक बैच ओपन होगा. वन बैच विल बी ओपनड. ऑलराइट, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. वन बैच विल बी ओपनड एंड वो बैच 7 days चलेगा. All days in a week including weekend. All days in a week including weekend. अब फेज 1 जो होगा पोर्शन कंप्लीशन का, फेज 1 वो 8 फरवरी से स्टार्ट होगा एंड अराउंड 15 सितंबर तक चलेगा. एवरीवन ओवर हियर, फेज 1 जो होगा वो 8 फरवरी से स्टार्ट होगा एंड 15 सितंबर तक चलेगा. 8 फरवरी से लेके 15 सितंबर तक वीकडेज में चलेगा 3+2 यानी 3 दिन और 2 दिन के कॉम्बिनेशन में SCMP एंड SFM. बिकॉज एक सेंट्रल लाइन था जिसका कुछ आई थिंक SCMP हो गया था, वेस्टर्न का SFM, ऐसा कुछ तो कॉम्बिनेशंस थे. एंड दैट इज द रीजन दैट 3 दिन SCMP, 2 दिन SFM एक वीक में, नेक्स्ट वीक में 3 दिन SFM एंड 2 दिन SCMP. सो 3+2 का कॉम्बिनेशन चलेगा ऑफ SCMP एंड SFM. एंड वीकेंड हमेशा 15 सितंबर तक
या तो 31 अगस्त तक वीकेंड विल बी रिजर्व्ड फॉर कल्पेश मेहता सर एंड ही विल बी टीचिंग एफआर इन वीकेंड. सो वीकडेज में चलेगा आपका एससीएमपी एसएफएम एंड वीकेंड में चलेगा एफआर. अच्छा, एससीएमपी एंड एसएफएम, एससीएमपी एंड एसएफएम लेवल 0 से स्टार्ट होगा. एससीएमपी एंड एसएफएम लेवल 0 से स्टार्ट होगा, इसलिए ऑल डेज चलेंगे लेक्चर और हर एक लेक्चर के नीचे बता दिया जाएगा कि आज क्या पढ़ाने वाले हैं. ऑलराइट, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा एंड आपको बता दिया जाएगा हर एक लेक्चर में दैट आज क्या पढ़ाने वाले हैं. तो आपका जो भी रेलेवेंट सिलेबस बाकी है वो आप आके कंप्लीट कर सकते हो. बिकॉज ये इसलिए करना पड़ा बिकॉज जब हमने स्टूडेंट से जाना तो पता चला कि अप्रैल अगस्त अक्टूबर में जो अलग अलग बैचेस एडनोवेट ने ओपन किए थे उसमें भी मल्टीपल पॉइंट ऑफ टाइम पे मल्टीपल स्टूडेंट्स ने एंट्री लिया है. तो किसी का एक चैप्टर बाकी है, किसी का स्क्रैच से बाकी है, किसी का बीच से बाकी है. दैट इज व्हाई द बैच विल बिगिन लाइक अ फ्रेश बैच. सैटरडे संडे एफआर जो चल रहा है वो कल्पेश सर जो इस वक्त ले रहे हैं वही स्पीड में चलेगा और वहां से कंटिन्यू होगा. दैट मींस कल्पेश सर पहले सैटरडे संडे में वेस्टर्न लाइन को पार पे लेके आएंगे सेंट्रल लाइन के साथ एंड देन बाकी के वीकेंड्स में साथ में सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन का एफआर खत्म करेंगे. तो उनका एफआर जहां से पेंडिंग है वहां से कंटिन्यू होगा. ऑलराइट, लेकिन एससीएमपी एंड एसएफएम लेवल 0 से स्टार्ट होगा फ्रॉम 8 फरवरी 2022. वीकडेज में 3 डेज एससीएमपी 2 डेज एसएफएम या तो फिर नेक्स्ट वीक में 3 डेज एसएफएम 2 डेज एससीएमपी. ऐसा आपका चलेगा 15 सितंबर 2022 तक. समझो कि किसी का पोर्शन जल्दी खत्म हो गया बिकॉज उसमें भी चांसेस लग रहे हैं कि एक दो सब्जेक्ट जल्दी खत्म हो जाएंगे. अंडरस्टूड दिस. देन अनदर सब्जेक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड. वो कौन सा सब्जेक्ट होगा? आइदर लॉ, ऑडिट, वो जो भी होगा बट शेड्यूल्स विल बी कोऑर्डिनेटेड, डोंट वरी. तो पॉसिबल है कि पार्ट 1 15 सितंबर तक आपका एससीएमपी एसएफएम एफआर तो 100% कंप्लीट हो जाएगा प्लस कोई दूसरा सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस होके उसके भी कुछ 8-10 लेक्चर खत्म हो जाए. I want a confirmation. Part 1 of the syllabus completion, is everyone clear with it? Yes, part 1 of the syllabus completion. ठीक है, बाकी देखो आप ज्वाइन कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो सब अलग बात है, एटलीस्ट क्लैरिटी है कि नहीं वो बताना. देन पार्ट 2 यानी 15 सितंबर के बाद बैलेंस सब्जेक्ट्स आपके लिए जाएंगे. ऑब्वियसली डीटी आईडीटी को थोड़ा लेट लेना पड़ता है. अंडरस्टूड दिस. अपार्ट फ्रॉम दोस चैप्टर्स जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स ना हो तो शायद पहले पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो चैप्टर्स में अमेंडमेंट का पॉसिबिलिटी है वो तो ऑब्वियसली बाद में ही आपको करना पड़ेगा. ऑलराइट, ओके, सो ऐसे चलेगा. एंड द टारगेटेड पोर्शन कंप्लीशन डेट विल बी 31 जुलाई 2023. 31 जुलाई 2023. अच्छा, आजकल एक ट्रेंड देखा गया है कि हर साल इंस्टीट्यूट कुछ नए मॉड्यूल्स लाता है फॉर न्यू अटेम्प्ट्स. अगर इंस्टीट्यूट ने ऐसे कोई नए मॉड्यूल्स लाए, अंडरस्टूड, या लेटर से कि कुछ ऐसा हुआ कि कुछ सिलेबस बढ़ गया, 1-2 चैप्टर एडिशन कर दिए, तो एक्सेप्शनल बेसिस पे, ये होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, पर एक्सेप्शनल बेसिस पे 10 से 15 सेशन इवनिंग में हो सकते हैं. एंड इवनिंग में भी ऐसे टाइम पे होंगे जो सब लोग को म्यूचुअली कन्वीनियंट रहेगा. अंडरस्टूड दिस आर्टिकल, और वो भी उसका रिकॉर्डेड बैकअप तो आपको मिलने वाला है, डू नॉट वरी अबाउट इट. ऑलराइट, ये अगर हुआ तो बेटा कैसा है ना, कुछ भी हम छुपाना नहीं चाहते. जो हो सकता है आपके साथ, we want to just communicate it with you. All right, because everyone now is going to be positive for their portion completion at any cost with the best faculties, with the best syllabus completion. And let me tell you that हमने डिस्कशन करके डेडिकेटेड व्हाट्सएप डाउट सॉल्विंग हेल्पलाइन नंबर्स अरेंज कर लिए हैं. कल्पेश सर का तो ऑलरेडी एक नंबर है, मेरा खुद का अपना डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म है, प्लस ये जितनी भी फैकल्टीज बताई वो फैकल्टीज पर्सनली उनके पास व्हाट्सएप डाउट सॉल्विंग हेल्पलाइन नंबर्स होंगे एंड दे विल रिप्लाई टू यू ऑन दैट व्हाट्सएप डाउट सॉल्विंग हेल्पलाइन. एंड ये सब में अगर आपको प्रॉब्लम फेस होता है, आई एम देयर. Operational grievances will be handled by me personally. Operational grievances will be handled by me personally. I am taking the guarantee of that. So do not worry about it. All right. इसलिए ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड आपको ये फ्यूचर में डॉक्यूमेंटेड भी रहेगा, इसलिए ये पीडीएफ भी देने वाला हूं. हवे में बात नहीं करता मैं. ऑल राइट. देन नवंबर 23 एंड जुलाई 20 मई 24, नवंबर 23 एंड मई 24 इनका अटेम्प्ट के पहले एक प्रीलियम हम कमिट कर रहे हैं. दैट एक प्रीलियम आपका लिया जाएगा एंड वो पेपर्स चेक किए जाएंगे. ऑलराइट. फिर एडिशनल बेसिस पे अगर किसी प्रोफेसर्स को एडिशनल टेस्ट लेने हो तो वो अपने अपने ऊपर है, लेकिन 1 प्रीलियम विल बी टेकन बाय जेकेएससी बिफोर द अटेम्प्ट.
जैसे नवंबर 23 का अराउंड सितंबर में कहीं अरेंज कर दिया प्रीलियम, मई 24 वालों का फरवरी मार्च में कहीं पे प्रीलियम अरेंज कर दिया। ऑलराइट, सो वन प्रीलियम विल बी टेकन। तो टेल मी, आपका लाइव इंटरैक्टिव लेक्चर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक बैच खुलेगा, इस वक्त जूम पे चलेगा। अगर फेस टू फेस कुछ ओपन होता है देन डू नॉट वरी, बेस्ड अपॉन द बैच कैपेसिटी वो चीजों को कोऑर्डिनेट करने में आया जाएगा। सेंट्रल लाइन के लिए घाटकोपर सेंटर रहेगा, वेस्टर्न लाइन के लिए अंधेरी सेंटर रहेगा, या तो अगर लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो एक सेंटर होगा, सेंटर एंड वेस्टर्न दोनों के लिए। अंडरस्टूड दिस? बट ये ध्यान में है कि अगर फेस टू फेस ओपन हुआ और बच्चों को वो चाहिए तो उनका भी ध्यान रख लेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, ओके, सो आपका लाइव इंटरैक्टिव लेक्चर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। रिकॉर्डेड बैकअप मिलेगा, टाइम टेबल दे दिया, बेस्ट फैकल्टीज जो अवेलेबल है, बेस्ट फैकल्टीज उनका कमिटमेंट लेके ही ये सेशन हो रहा है कि वही फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। ऑलराइट, वही फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। तो बेस्ट फैकल्टीज का आपका अरेंजमेंट हो गया, टेस्ट सीरीज का अरेंजमेंट हो गया, डाउट सॉल्विंग सेशन का भी आपका अरेंजमेंट हो गया, एंड पोर्शन कंप्लीशन डेट भी आपको कमिट कर दिया। ऑलराइट, अब आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। व्हाट विल बी द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस? ओके बेटा, एक गूगल फॉर्म का लिंक बनाया है, तो ये गूगल फॉर्म का लिंक आपको कॉपी करना है। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। यस, ये लिंक आपको कॉपी करना है एंड यहां पे आपको आपके ब्राउजर पे या मोबाइल पे पेस्ट करना है। कैन एवरीवन सी माय गूगल क्रोम ब्राउजर? यस, यस, जस्ट नीड अ कंफर्मेशन। इतने सारे लोग हैं तो लैग हो सकता है मीटिंग में, दैट इज वाई। ओके, अब ये आपका फॉर्म है, इसमें आपको ईमेल आईडी आपका ऑटोमेटिक ये फॉर्म ले लेगा, वो तो कंपलसरी है। फुल नेम इज कंपलसरी और वैलिड मोबाइल नंबर, एक ऐसा नंबर देना जिसपे कॉल भी कर सके और व्हाट्सएप पे भी हो। ऑलराइट, ताकि ऑपरेशनल एकदम मस्त हो जाए, कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अ नंबर विच जिसपे कॉल भी कर सके, व्हाट्सएप पे भी हो, दोनों अलग अलग नंबर मत देना प्लीज। ऑलराइट, ओके। फिर आपने टोटल अमाउंट ऑफ फीस कितनी पे की है एडनोवेट में, ये बेटा आपने चाहे चेक में किया हो या कैश में किया हो, टोटल अमाउंट लिखना है यहाँ पे। अंडरस्टूड? टोटल अमाउंट ऑफ फीस दैट यू हैव पेड। फिर जैसे कि हमने 31 जनवरी की मीटिंग में देखा, कुछ बच्चों ने कैश में फीस पे किया था, तो जिन्होंने भी सपोज 59,000 यू हैव पेड एट एडनोवेट टोटल, एंड लेट अस से कि आपने उसमें से 50,000 कैश में दिया था, तो आपको अमाउंट लिख देना है 50,000 कैश में। ऑलराइट, ऑब्वियसली सिंस यू हैव पेड इट इन कैश, आपको एक अपने हैंडराइटिंग में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये देखो, इफ यू हैव पेड फीस इन कैश then please submit a scanned PDF of self-attested declaration written and signed by you as follows. तो आपको लेटर में लिख के देना है, to the concerned authorities, I hereby declare that I have paid 50,000 of fees in cash to Ednovate coaching class in Mumbai. Therefore, I request you to subsidize the amount from your fees. Alright, ये बेटा आपको लिखना है, इसको स्कैन करना है। इमेज की बात नहीं कर रहा हूं, इसको स्कैन करना है और यहां पे ऐड फाइल करके आपको स्कैन पीडीएफ अपलोड कर देना है। ऑलराइट, ताकि हमें भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ेगा इस चीज को लेकर। ऑलराइट, ओके, सो ये अगर आप दे दोगे तो ये मान लिया जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, दैट यू हैव पेड दिस अमाउंट ऑफ फीस। लेकिन आपके पास एडिशनली जो भी एविडेंस हो, ऑलराइट, आपके पास फी रिसीट है, यस, या तो आपके पास कम्युनिकेशन किया हुआ है कि सर मैंने आपको 50,000 पे किया, आपको मिले क्या, ऐसा कन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट, या फिर बैंक एंट्री, करेक्ट। तो ये सारा एविडेंस आपको एक पीडीएफ बनाकर आपको यहां पे अपलोड कर देना है यहां पे। ऑलराइट, ये दूसरा पीडीएफ अपलोड करना है। सो देयर आर टू पीडीएफ्स, फर्स्ट वन इज ओनली इफ यू हैव पेड फीस इन कैश, तो ये एप्लीकेबल होता है। सेकंड वाला तो कंपलसरी सबके लिए, कुछ ना कुछ आपको एविडेंस पे दिखाना ही है कि बॉस हमने क्या पेमेंट किया है। अच्छा, कोई बच्चा अगर बोल रहा है कि हमारे पास कुछ भी एविडेंस नहीं है, लेकिन मैंने 40,000 रुपीज पे किया एडनोवेट में और मेरे पास कुछ भी एविडेंस नहीं है, सर कैश दिया था और मैंने 40,000 पे किया था, तो ये देखो, if you don't have any evidence then please upload a self attested, यानी खुद साइन करो, declaration scanned copy PDF that I have paid 40,000 fees to Ednovate but I do not have any evidence and I haven't received fee receipt. All right, तो बेटा गूगल फॉर्म पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अच्छे से भरना, फटाफट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका हो जाएगा। एंड देन एक चेकबॉक्स हम आपसे टिक करवा रहे हैं, ये बेटा खाली आपको मॉरली रिस्पॉन्सिबल बनवाने के लिए है। ये चेकबॉक्स क्या है कि आप यहां पे बैच शुरू कर दो, बिंदास पढ़ो,
अगर एडनोवेट से कोई रिफंड नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको लाइफ में कोई फीस के बारे में कोई पूछेगा नहीं, जो भी आपका सब्सिडी है वो आपका सब्सिडी रहेगा, जितना आपने एडनोवेट में पे किया है वो सब्सिडाइज करके आपको मिल जाएगा, दैट्स इट। लेकिन एक एथिकली यू शुड ट्राई, बिकॉज हम लोग सब बहुत कॉस्ट इंकर करने वाले हैं, सो एथिकली यू शुड ट्राई टू गेट रिफंड फ्रॉम एडनोवेट। एंड अगर आपको रिफंड मिल जाता है तो आपको जेके शाह क्लासेस में सबमिट कर देना है। ऑलराइट, वहां पे आपको चेक डिपॉजिट कर देना है। यहां पे मैंने क्लियरली लिखा है, वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू गेट अ रिफंड, बट इफ यू डू गेट इट ऑन एथिकल नोट, प्लीज डिपॉजिट इट विथ अस। ये चेक बॉक्स आपको टिक कर देना है एंड देन यू आर गोइंग टू सबमिट। ऑलराइट, इंटेंशन इज टू सर्व द स्टूडेंट्स, इसलिए आपके पास जो भी एविडेंस आप सबमिट कर दो, डू नॉट वरी, किसी का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड, किसी का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। हम बहुत पॉजिटिवली ये प्लान लेके आए हैं एंड आई होप दैट आप पॉजिटिवली इस प्लान में ज्वाइन करोगे एंड किसी का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा, सबको सर्विस देने वाले हैं एंड सबका सिलेबस कंप्लीट होगा। आजू बाजू में बहुत नेगेटिविटी चल रही है, बहुत मेम्स चल रहे हैं, बहुत वीडियोस चल रहे हैं। आई रिक्वेस्ट कि सब लोग बंद करो अभी ये सब एंड प्लीज स्टार्ट विथ योर सिलेबस and finish it, because that is what you need to get your membership with the ICAI. Am I correct, everyone? Yes or no, sir? This is not a joke, getting everything on one place. All right, so everyone, please cooperate over here. And any concluding comments from Kalpesh sir and TD sir? Anything, any positive motivational point? Yes, TD sir. No sir, Sir, मैं कुछ मिस कर गया सर, बताइए। no, absolutely right, there is no problem at all. Yes, okay. Yes, Kalpesh sir. Everything is fine, it is proper, it is self-explanatory. I think student would have understood everything and now they have to just secure their career. Correct. Okay, sir. So I will stop recording now.